নমস্কার। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয় এবং আজকের মুখ্য আলোচক ডক্টর ওমজি গুপ্তা মহাশয়ের অনুমতিক্রমে আমরা শুরু করতে চলেছি আমাদের সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়েই আলাপনের ৮২তম পর্ব। ৮২তম পর্বের শুরুতেই উপস্থিত সমস্ত শ্রদ্ধেয় গুণীজন, শিক্ষাবিদ তথা শারীর শিক্ষাবিদ এবং কোচ, শিক্ষক শিক্ষিকা, অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং আমার প্রিয় শিক্ষার্থীদের সকলকেই শুভ বিজয়া দশমীর একরাশ শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তথা বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব, আশা করি সকলেরই ভালো কেটেছে এবং সবাই খুব ভালো থাকুন। মা দুর্গার অশেষ আশীর্বাদ সকলের উপর বর্ষিত হোক, এই কামনা করে আমরা শুরু করছি আজকের এই ৮২তম পর্ব। এই পর্বের আমাদের সঙ্গে আছেন আজকে মুখ্য আলোচক ডক্টর ওমজি গুপ্তা মহাশয়। আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যার, আছেন অধ্যাপক অরুণ কুমার উৎপল স্যার সহ বিশিষ্ট শারীর শিক্ষা ব্যক্তিগণ। আমি আর কথা না বাড়িয়ে একদম শুরুতেই আমরা চলে যাব অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে, যার স্বাগত ভাষণের মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রতিটি পর্বের শুভ সূচনা হয়ে থাকে। আমি অনুরোধ করছি আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যারকে এই ৮২তম পর্বের স্বাগত ভাষণ রাখার জন্য। নমস্কার স্যার। নমস্কার, গুড ইভিনিং এভরিবডি। সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপন পশ্চিমবাংলার ঝাড়গ্রাম জেলার সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের নিবেদন। সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপন আজকের ৮২তম পর্ব। এই আজকের দিনের পর্বে উপস্থিত সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, যারা আলাপনকে উপস্থিত হয়ে সমৃদ্ধ করেছেন, মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সবাইকেই স্বাগত জানাচ্ছি। আর যারা শিক্ষার্থী আছেন আলাপনে যুক্ত হয়েছেন, তাদেরকেও মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমরা বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে আলাপনে পেয়েছি আলাপনের পূর্ববর্তী বক্তা, আলাপনের আরেকজন সম্মানীয় পথপ্রদর্শক ডক্টর একে উপাধ্যায়। আরো উপস্থিত আছেন সম্মানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যারা তাদের সুসমৃদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা আলাপনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছেন। মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সবাইকেই স্বাগত জানাচ্ছি। I heartily welcome Major Dr. Omji Gupta ji. He is an assistant professor in HOD, Department of Physical Education, Sant Guru Ghasidas Government PG College, Chhattisgarh. I heartily welcome, sir. Today his topic is adventure, sports and untouched field in the physical education. মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মেজর ডক্টর ওমজি গুপ্তা মহাশয়কেও স্বাগত জানাচ্ছি। বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে উপস্থিত সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ যারা আছেন উপস্থিত, সবাইকেই মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়ে আলাপন ৮২তম পর্ব অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক প্রণাম জানাই সম্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে, যার স্বাগত ভাষণের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই ৮২তম পর্ব শুরু হয়ে গেল। এরপর আমরা আর দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়ে আমি অনুরোধ করব আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যাপিকা ডক্টর নিতু দত্ত মহাশয়াকে আমাদের আজকের মুখ্য আলোচকের সঙ্গে সকলের সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য। ম্যাম প্লিজ। Thank you, Dr. Mrityunjay Das. It is my great privilege. Well, good evening, ladies and gentlemen, respected dignitaries, respected principal, Seva Bharati Mahavidyalaya, Professor Dr. Devaprasad Sahu sir, and my dear students. I am Dr. Nitu Datta, serving as assistant professor in Seva Bharati Mahavidyalaya. Well, it is my great pleasure to introduce Dr. Omji Gupta, an esteemed scholar and practitioner in the field of physical education with a distinguished career spanning over 2 decades. He holds a PhD in sports chronobiology from Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur, where he specialized in studying the impact of physiological rhythm on sports performance. His academic credentials are extensive, with top-ranking achievements
in BP.Ed, MP.Ed, and postgraduate diploma in yoga therapy, sports management, and many more. Dr. Gupta's contribution to physical education go beyond academy. He is a certified black belt in both Judo, Shodan, and Yon Dan. A testament of his expertise in martial arts, he has earned numerous accolades, including the first merit position in the Chhattisgarh Public Service Commission exam for assistant professor in physical education, making him the first and only faculty member in the field of Chhattisgarh government. In addition to his academic work, Dr. Gupta has served as an associate NCC officer with the rank of lieutenant and completed prestigious course for captain and major rank at the NCC Officers Training Academy, Nagpur. His leadership extends to coordinating various national and state level competitions, workshops, and seminars. He has published over 21 research papers in peer-reviewed journals, presented at numerous national and international conferences. As a dedicated educator and researcher, Dr. Gupta continues to mentor students and contribute to the field of physical education, focusing on the holistic development of individuals through sports and fitness. His extensive experience includes position in prestigious institutions such as Sri Hanuman Vyam Prasharak Mandal, Amravati, Maths University, Raipur, and Jan Academy for Sporting Excellence, Bangalore. Today, we are honored to have you, sir, share your insights on adventure sports and untouched field of physical education. We look forward for benefiting from the wealth of knowledge and experience from your side. Most welcome, sir, on platform Alapur. Once again, welcome, sir. Over to Das. Thank you, Dr. Nitu Datta ma'am, for introducing our today's distinguished speaker. Now, I would like to invite our today's distinguished resource person, Dr. Omji Gupta sir. Please enlighten us. Please, sir. Thank you, Mrityunjay sir. Thank you, Neetu ma'am, for introducing me. Upal sir, चरण स्पर्श आशीर्वाद रखिएगा. हमारे आज के Good evening, Upal sir. You are looking very fit. Very nice to see you again, sir. And I welcome you even. Welcome, sir. चरण स्पर्श सर, उपल सर. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, सेवा भारती महाविद्यालय, कि आपने मुझे यह मौका दिया. I got an opportunity to present my views upon adventure sports and physical education. तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं टॉपिक पे आता हूँ. फिजिकल एजुकेशन नॉर्मली इंडिया के अंदर में टीचर एजुकेशन कोर्स के रूप में ही ज़्यादा जाना जाता है, टीचर एजुकेशन कोर्स. अब इसमें बेसिकली बीपीएड में हम पीईटी या पीटीआई की ट्रेनिंग हम देते हैं. बहुत सारे बच्चे ये कोर्स करते हैं और अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम लोग को जॉब मिल जाती है. पर हमारे फिजिकल एजुकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो है, जो हम हमेशा मेरे ख्याल से ध्यान दे नहीं पा रहे हैं. और इस फील्ड में मैं देखता हूं कि दूसरे फील्ड के लोग इस फील्ड को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और ये बहुत ही शानदार फील्ड है जहां पर अच्छा क्या बोलते हैं इनकम हो सकता है. 2020 में जो हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं, 2020 में इन्होंने एक बहुत अच्छा 3 T's का टर्म्स कॉइन किया था, ट्रेड, टूरिस्ट एंड टेक्नोलॉजी. तो यहाँ जो टूरिज्म है वो एक बहुत ही शानदार फील्ड है जिसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है. और इसके प्रमोशन से क्यों ना हम फिजिकल एजुकेशन वाले भी कुछ लाभान्वित हो सकें, कुछ लाभ प्राप्त कर सकें. तो मेरा यहाँ पर कहना यह है कि हम अपने कोर्सेस में बेसिकली कॉम्पिटिटिव कोर्स स्पोर्ट्स और ओलंपिक स्पोर्ट्स को हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं. एक पोर्शन अब हमारे को एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी रखना चाहिए. एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या है इसको भी हम समझे. और वैसे एडवेंचर स्पोर्ट के बहुत से भाग अब ओलंपिक में भी आना चालू हो गए हैं. एज ए क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स जो है ओलंपिक में भी इन खेलों को शामिल किया जाने लगा है.
और मेरे ख्याल से नेक्स्ट ओलंपिक से यह कोर्स जो है वह ओलंपिक में शामिल हो जाएंगे। क्लाइंबिंग है, सर्फिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, स्केट बोर्डिंग इंक्लूडेड है जो कि विंटर ओलंपिक में ऑलरेडी शामिल है। क्लाइंबिंग में आपका बोल्डरिंग शामिल है और कयाकिंग एंड कैनोइंग ओलंपिक में ऑलरेडी शामिल है। ये अपना एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है और प्लस कहीं कहीं पर एज ए एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी खेला जाता है। तो आज के हम टॉपिक पर आते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब एडवेंचर स्पोर्ट्स पर क्या क्या आएगा? एडवेंचर स्पोर्ट्स को अगर हम बड़े बड़े भागों में बांटें तो इसमें लैंड बेस्ड है एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर बेस्ड हैं, एयर बेस्ड हैं, स्नो बेस्ड हैं और अदर टाइप के भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, या जिस इंस्टीट्यूट के पास में जिस खेल का थोड़ा बहुत अगर फैसिलिटी हो तो वहां पर यह बच्चों को सिखाना चाहिए। उसका एक कारण ये भी है कि आजकल जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें यह भी है कि बच्चों को किस प्रकार से ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, तो आसपास के नेचर के साथ में उनको जोड़ा जा सके और वो सेफली कैसे जोड़ा जा सके। जैसे एक सिंपल सी बात है कि पिकनिक में बच्चों को लेके जाते हैं, पर सिर्फ पिकनिक में लेकर के जाना और अगर पिकनिक के साथ में कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स जो सेफ हों, जिसको हम करना अच्छे से जानते भी हों और उसको अगर हम करवाएं तो इसका मेरे ख्याल से जो डेवलपमेंटल वैल्यू है वो और बढ़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। सिंपल अगर हम लैंड बेस्ड की अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपका रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग और हाइकिंग। ट्रैकिंग हाइकिंग बहुत ही इजी है, डिपेंड करता है कि हम ट्रैकिंग एंड हाइकिंग को किस प्रकार से और किस लैंड एरिया में हम कर सकते हैं। उसके बाद है आपका पैराग्लाइडिंग आपका और डाउनहिल बाइकिंग। बाइकिंग मीन्स सिर्फ साइकिल विदाउट मोटर, जो हम नॉर्मल साइकिल है, और मोटरसाइकिल के साथ में भी बहुत सारे लोग ये गेम्स को करते हैं। फिर वाटर बेस्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपका आता है सर्फिंग, कयाकिंग, वाटर राफ्टिंग, विंड सर्फिंग, काइट सर्फिंग। देन एयर बेस्ड आपका है पैराग्लाइडिंग, पैरा जंपिंग, हैंग ग्लाइडिंग, बंगी जंपिंग, बेस जंपिंग। स्नो बेस में नॉर्मली हमारे पास स्नो का बेल्ट हिमालयन में है तो वहां पर ये हो सकता है। स्कीइंग है, स्नो बोर्डिंग, स्नो मोबाइलिंग, आइस क्लाइंबिंग, स्नो शूइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, डाउनहिल स्कीइंग और अदर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है केविंग, स्प्लंकिंग। केविंग को मैं इस कारण से बोल रहा हूँ कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही अच्छे जो बायो स्पिलियोलॉजिस्ट हैं, बायो स्पिलियोलॉजिस्ट मीन्स जो कि कीड़ों पर और जो केव के जो खास कीड़े होते हैं उन पर वह रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने कुछ केविंग के बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत सारे देशों के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, वो भी फ्रीलांस, कोई नौकरी में नहीं, फ्रीलांसिंग। तो ये एक बहुत अच्छा गेम हो सकता है। फिर एक गेम है ओरिएंटियरिंग। ओरिएंटियरिंग गेम्स भी बहुत शानदार है जिसको हम अभी जानते नहीं, ये हमको जानना चाहिए। कई देशों में, यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हमारे बहुत सारे एशियन कंट्रीज में भी ये फेमस है। तो ये कुछ गेम है। अब इसी गेम को अगर हम थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे अगर करें जहाँ थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाए तो यही एडवेंचर जो स्पोर्ट्स हैं यह एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप में जाने जाते हैं। अब क्या क्या हो सकता है एडवेंचर स्पोर्ट्स वर्सेस एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स का मेन एम जो रहता है वो रहता है फोकस ऑन एक्सप्लोरेशन एंड एंजॉयमेंट, यानी कुछ नया देखने के लिए और कुछ हमारे को आनंद आए, ऐसी एक्टिविटीज करने पर इसका मेन लक्ष्य रहता है। फिर इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको कुछ लिस्ट से नाम बताए। तो आपका हाइकिंग है, कैंपिंग है, कयाकिंग है। कैंपिंग भी एक अच्छी एक्टिविटी है कि अगर कोई सेफ जगह हो तो किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारी एक्टिविटीज मैंने एनसीसी के थ्रू और वैसे जो अपने एडवेंचर फाउंडेशन के जो इंस्टीट्यूट है वहां से भी मैंने किया है। और हमारे यहाँ जो बीपीएड के बच्चे हैं उनको हम हर साल इस प्रकार के कोर्सेज की ट्रेनिंग के लिए भेजते भी हैं। तो कैंपिंग है, कयाकिंग है, क्लाइंबिंग है और रिस्क मैनेजमेंट की कुछ जो रिस्क होते हैं, अगर थोड़ा सा हम अपने
बच्चों को गाइडेंस दें कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। इवन अगर कोई पिकनिक में भी जा रहे हैं कोई डैम के पास में, तो एज अ एडवेंचर स्पोर्ट्स अगर हम अपने बीपीएड के बच्चों को पिकनिक के दौरान किस प्रकार की रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं, बहुत ही न्यूनतम रिस्क है, कम रिस्क है, बट इसको भी कैसे मैनेज किया जा सकता है ये हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अब अगर हम एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की ओर देखें, लगभग दोनों में नाम आपको एक जैसे ही मिलेंगे, पर क्या होगा कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में क्या होगा कि ये हायर लेवल ऑफ रिस्क आएगा, जिसमें एड्रेनलिन इंड्यूसिंग नेचर का है कि थोड़ा रिस्क बढ़ेगा तो एड्रेनलिन रश बढ़ेगा। अब नॉर्मली एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है, बट एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स और स्पेशलाइज्ड विशेषीकृत स्किल्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, एक्सट्रीम जो स्पोर्ट्स है इनमें कंपटीशन भी अच्छे होते हैं, तो कुछ ये जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हैं ये कुछ आपके ऐसे हैं कि यह अपनी एक लिमिट से अधिक, एडवेंचर स्पोर्ट्स में कोई कंपटीशन नहीं है, अपने समय पर आराम से आप अपनी एक्टिविटी पूरा करिए। पर एक्सट्रीम स्पोर्ट जैसे ही आता है तो वहां पर कंपटीशन भी साथ में जुड़ जाता है, क्योंकि स्किल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इक्विपमेंट ज्यादा यूज होंगे। अब अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के कुछ जो अपने एग्जाम्पल हैं वह आपके हो जाएंगे हाइकिंग। अभी हाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग, कैंपिंग, क्लाइंबिंग, राफ्टिंग, ये सब एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है, पर जैसे इसमें कंपटीशन जुड़ गया और वर्ल्ड में इसकी बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन भी होते हैं जो हमें जानना चाहिए, ये हमें जानना चाहिए। अब अगर इन खेलों को हमको सीखना और समझना है तो सबसे पहली चीज जो हमारे को समझना होगा और सीखना होगा, क्या क्या मेन चैलेंजेस हैं और क्या क्या हमें सीखना चाहिए। सबसे पहला है, एडवेंचर स्पोर्ट्स कोई भी हो, कि सेफ्टी इज पैरामाउंट। सेफ्टी सबसे शीर्ष में होगा, ऊपर में होगा। इनमें किसी भी छोटे से छोटे रिस्क का प्रॉपर असेसमेंट करके किसी भी प्रकार से दर्शकों को या जो भी उसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें चोट न लगे, इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, हम हाइकिंग जा रहे हैं, अब हाइकिंग चाहे तो आप रोड के साथ में जाएं, पगडंडियों में जाएं, या नेचर के साथ में कंट्री साइड में जाएं, तो वहां पर किस प्रकार के रिस्क आ सकते हैं और उसके लिए पहले से असेसमेंट करके अगर पहले से हम प्रायर मेजर लेकर के हाइकिंग करवाएं तो बहुत ही एंजॉयबल और इजी हो जाता है। उसके बाद में आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ा सा एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए हमारे यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। थोड़ा सा अगर हमारे फिजिकल एजुकेशन फील्ड से भी लोग यहाँ पर आएंगे तो उसके कुछ अधोसंरचना जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए वह हम सेट कर सकते हैं, और टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज के लिए ये फायदे मिलते हैं। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वह कायदे से किस प्रकार से लोगों को एंजॉयबल बना करके और विभिन्न एज ग्रुप के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए कैसे हम अच्छे ढंग से इसका ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, वो हमको ध्यान देना चाहिए। पॉपुलैरिटी ऑलरेडी है। जब हम किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बहुत ही क्या बोलते हैं ट्रेंड लोग ऑफर करते हैं, और लोग बाग क्या बोलते हैं उनके साथ में उस स्पोर्ट्स के एंजॉय करते हैं। जैसे कि आप अगर कोई बीच में जाएंगे तो वहां पर सर्फिंग, स्नॉर्कलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के बहुत सारी चीज आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर हिमालयन बेल्ट में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे जगहों पर आपका क्या बोलते हैं रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइनिंग, ये सब आपको प्रोफेशनल जो एकदम अच्छे होते हैं वह करवाते हैं। और कुछ कोर्सेस में मैंने देखा है कि कुछ लोग इसको पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं। अगर हमारे बीपीएड वाले भी हैं जो फिट हैं, जो अपने फिटनेस का यूज कर सकते हैं, तो छुट्टियों में या सेटअप में या महीने में एक बार सेट करके कुछ लोगों को जोड़ करके आपस में, चाहे तो अपने मित्रगण हो, चाहे तो वो प्रोफेशनली कुछ क्या बोलते हैं ट्रैकिंग के ग्रुप्स का ऑर्गेनाइज करके उनसे कुछ क्या बोलते हैं जो भी चार्जेस वो चाहते हो उसका मैनेजमेंट करके ये काम कर सकते हैं। और कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो क्या बोलते हैं इस फील्ड में ऐसा काम कर रहे हैं, जिनका हॉबी जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट, ट्रैकिंग, हाइकिंग ये सब है। तो वह 1 या 2 दिन का पैकेज बना करके कुछ लोगों पर ये अपने सोशल मीडिया के थ्रू इसको क्या बोलते हैं एडवर्टाइज करके ग्रुप रेडी करके ये अपना महीने के 1 या
2 दिन में यह ऑर्गेनाइज करते हैं और एक अच्छा हैंडसम क्या बोलते हैं उनको एक रेवेन्यू अदर देन जो जॉब है उनका वो भी मिल जाता है। और कुछ लोग क्या बोलते हैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग ये वाला काम भी कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे कि हाइकिंग है, ट्रैकिंग है। और हमारा जो इंडिया है इतना डाइवर्स जियोग्राफी है, भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि हमारे पास में वाटर बॉडी से लेकर के, रिवर से लेकर के, बीचेस से लेकर के, माउंटेन से लेकर के सारे जो जियो फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जरूरत है तो सही ढंग से इसको एक्सप्लॉइट करने की, और इससे बहुत हमको फायदा मिल सकता है। और फिजिकल एजुकेशन फील्ड में भी थोड़ा सा कुछ कोर्सेज, अभी कुछ फिजिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने इन कोर्सेज को चालू भी किया है और बहुत अच्छे से ये कोर्सेज कर भी रहे हैं। और बेसिकली इनके जो कोर्सेज हैं बहुत सारे वो हिमालयन बेल्ट में जो आपके एडवेंचर इंस्टीट्यूट्स हैं 6 या 7 अभी हैं, वहाँ पर मैक्सिमम ये कोर्सेज चलते हैं। तो वहाँ पर हम जा करके ये कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि बीपीएड के बच्चे हैं, मेरे यहाँ के जो बीपीएड के बच्चे हैं उनको मैंने ऑफर किया कि जूनागढ़ में रॉक क्लाइंबिंग, बेसिक माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग बहुत अच्छा कोर्स होता है और सबसे मीन्स कम रेट में वहाँ पर कोर्सेस होते हैं जो कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा रन होते हैं। वहाँ पर अगर भेजा जाए तो 10 या 12 दिन के कोर्स बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। गिर फॉरेस्ट में जो गिर के माउंटेन्स हैं वहाँ पर वो कोर्सेज बहुत अच्छे से रन किए जाते हैं और बच्चे जब सीख करके आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। जैसे कैंपिंग हम अपने आसपास दें, पर कैंपिंग कहीं दूसरी जगह में जाके करना, ट्रैकिंग, नाइट ट्रैकिंग, हाइकिंग, क्लाइंबिंग दूसरी जगह में सीखना एक अच्छा अनुभव होता है, तो बच्चों में ये कॉन्फिडेंस आता है। तो ये हमारे को सिखाना चाहिए। अब वाई एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, अब एक्सट्रीम स्पोर्ट्स से इकोनॉमिक बूस्ट तो हमारे को अच्छा मिल सकता है, क्योंकि टूरिज्म, अगर कोई बंदा पीटीआई है, कुछ है उसको खास क्या बोलते हैं सैलरी मिल रही है, बट अगर एज अ एंटरप्रेन्योर इस चीज पर अगर ये आए कि टूरिज्म के थ्रू क्या बोलते हैं इन स्पोर्ट्स को अच्छे से डेवलप, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर मैं अपने राज्य में देखूं जहां जहां पर एक्सट्रीम या एडवेंचर स्पोर्ट्स चल रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स चल रहे हैं, आपका ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, हाइकिंग चल रहा है, वहां पर फिजिकल एजुकेशन वाले कोई लोग ही नहीं है। ऐसे ही मैं थोड़ा सा लीग से हट के बोलता हूँ कि अगर आईपीएल हो रहा है, केपीएल हो रहा है, तो कितने फिजिकल एजुकेशन फील्ड के एकदम क्वालिफाइड लोग वहां पर काम कर रहे हैं, बहुत कम। तो उस प्रकार से हमारे को सोच करके एडवेंचर स्पोर्ट का फील्ड अभी एक नया फील्ड और ये अब आकार ले रहा है। कई जगह में इवन हमारे राज्यों में भी बंगी जंपिंग चालू हुआ है, पर फिजिकल एजुकेशन वाले कोई नहीं है उसमें, जबकि फिजिकल एजुकेशन के रिलेशन में ये सारे क्या बोलते हैं एक्टिविटीज हैं और स्पोर्ट्स हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हर फिजिकल एजुकेशन में, जैसे अभी मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई कि बीपीईएस यूजीसी ने अभी हमारे को दिया है एक कोर्स, बीपीईएस एंड एमपीईएस। बीपीएड और एमपीएड होता है, ये प्योरली टीचर एजुकेशन कोर्स है, टीचर्स तैयार करता है। तो कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बीपीईएस कोर्स, जैसे कि स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी बीपीईएस कोर्स एडवेंचर स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन के साथ में आई हुई है, जिसमें डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। तो इसी प्रकार से और भी जो फिजिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं वह इन फील्ड्स में कुछ कोर्सेज धीरे धीरे चालू करें, जिस फील्ड के एक्सपर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और थोड़ा थोड़ा ये और अपने एरिया के हिसाब से जिस प्रकार के आपके पास में आसपास में एरिया, वहां के बच्चे अगर आपके पास में आते हैं वो किस प्रकार से इन कोर्सेज को करके डायरेक्ट क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या क्या बोलते हैं कुछ काम चालू कर सकें, इंडस्ट्री में एडवेंचर स्पोर्ट्स के थ्रू एंट्री कर सकें। इवन ये मानिए कि जैसे एक है स्पिलंकिंग या केविंग, गुफाओं के अंदर में जाना। हमारे यहाँ पर कुडुंसर केव्स है जो बहुत ही गहरी केव्स है, जो मैंने कहा कि हमारे स्पीलियोलॉजिस्ट एक हैं, नाम है अपना डॉक्टर जयंत विश्वास, वो वर्ल्ड के माने स्पीलियोलॉजिस्ट है और उस केव में कई सारे केविंग से काम करते रहते हैं और फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं। उनको केविंग स्पोर्ट्स के लिए वह ग्रुप बनाकर लेकर के जाते हैं कॉलेजेस के बच्चों के, बायोडायवर्सिटी केव में कैसी होती है, कैसे वहां की लाइफ होती है, उसके लिए फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं। इवन वो पीएचडी गाइड भी हैं।
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वर्ल्ड से उनको फंडिंग मिलती है और वर्ल्ड से कई बाहर से यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज से लोग यहाँ पर सिर्फ केविंग करने के लिए आते हैं और उन्होंने अच्छा कॉन्टेक्ट सेट किया हुआ है। हर 2 महीने में फॉरेनर्स को वो अट्रैक्ट करके केविंग के लिए लेकर के आते हैं। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए भी केविंग की बहुत सारे वो काम करते रहते हैं, जिसमें वो केविंग में कई प्रकार की एक्टिविटी होती है। वो मींस आपका सिंपल केविंग से लेकर के एक्सट्रीम केविंग तक है, क्योंकि कुछ केव ऐसे होते हैं जो बहुत ही अंदर होते हैं, गहरे होते हैं, जहां पर जाने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड स्किल्स की आवश्यकता है, वो भी करवा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें हमारे पास अवेलेबल है। पर हम अगर अपने आसपास देखें तो हम बहुत सारे गेम्स और जो हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उसको हम अच्छे से डेवलप एक और विभाग के रूप में डेवलप कर सकते हैं, नॉट ओनली एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बट एज अ इकोनॉमिक स्पोर्ट्स, जिससे हमारे कुछ इकोनॉमी हमारे भी ठीक हो और देश की भी ठीक हो। अब अगर इकोनॉमी की प्रॉपर बात की जाए तो क्या क्या चीज हो सकता है अगर हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स इन इंडिया, नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, लोग बाग क्या होते हैं, कंपटीशन में कितने बच्चे हैं, अगर हम देखें ओवरऑल पॉपुलेशन का मुश्किल से 1 या 2% लोग ही कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में। उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो मुश्किल से 10 या 20% लोग फिटनेस के लिए अभी जागरूक हो रहे हैं। हर एज ग्रुप के लोग अभी भी क्या बोलते हैं, उतने जागरूक नहीं हुए कि वो खेल सके। पर एडवेंचर स्पोर्ट्स, अब एडवेंचर स्पोर्ट्स को, हाइकिंग ट्रैकिंग को अगर हम अपने क्या बोलते हैं पिलग्रिमेज के साथ भी जोड़ें, सेट करें, तो बहुत सारे हम काम कर सकते हैं और इसके द्वारा टूरिज्म को हम बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं, जहां से अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। अगर हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें तो इकोनॉमिक को अगर हम देखें कि इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, तो अगर टूरिज्म का रेवेन्यू देखें, डायरेक्ट रेवेन्यू, जो भी बंदा टूरिस्ट को बुला रहा है और कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है एज ए पैकेज के रूप में, डायरेक्ट बेनिफिट उस बंदे को मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, बुकिंग, ये सब। और अगर इनडायरेक्ट रेवेन्यू देखें तो एडवेंचर स्पोर्ट जिस जगह पर हो रहा है तो उस जगह का भी क्या है, लोकल इकोनॉमी अपने आप क्या बोलते हैं बूस्ट करेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो जो लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में इस प्रकार के खेलों में लगे हुए हैं, जैसे कि कोई एडवेंचर गाइड है, आउटडोर एजुकेटर है, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स है, आउटडोर इंस्ट्रक्टर है, एक्सपीडिशन लीडर है, वाइल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो कि मेडिकल केयर के हिसाब से हो सकता है, एडवेंचर फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, आउटडोर राइटर, जर्नलिस्ट, इस प्रकार के डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और इनडायरेक्ट जो इनका सपोर्ट कर रहा है, तो इनडायरेक्ट भी क्या बोलते हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एडवेंचर पार्क्स, नॉर्मली अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पर कई जगहों पर काम कर भी रही है, और जब हम काम करेंगे तो हम अपने हिसाब से भी पार्क न सही, कुछ एक हम स्पॉट्स को लोकेट करके वहां पर ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। और एक्सेसिबिलिटी, जो रिमोट लोकेशन है वहां पर एक्सेसिबिलिटी बढ़ सकती है। फिर ब्रांड बिल्डिंग, तो अब अगर हम जो व्यक्ति कोई एक खास पॉइंट पर कोई काम कर रहा है तो डेस्टिनेशन मार्केटिंग हो सकती है कि अलग अलग डेस्टिनेशंस का लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग होगा तो उस जगह को लोग जानेंगे। अभी तो आजकल जियो टैगिंग भी चालू है। उसके बाद फिर आपका इमेज एनहेंसमेंट, कि हमारा जो रेपुटेशन है एडवेंचर टूरिज्म के हिसाब से हमारे इंडिया के इमेज को अच्छे से सामने में ला सकता है। फिर उसके बाद आपका आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। अगर जिस लोकल जगह पर हम कोई हाइकिंग, ट्रैकिंग या इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो वहाँ का जब बाहर के लोग आएंगे तो कल्चरल भी एक आदान प्रदान अच्छा होता है और कम्युनिटी को भी उसका फायदा मिलता है। थोड़ा सा वहाँ के रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगी तो लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा। फिर सस्टेनेबल टूरिज्म की कई सारे टूरिज्म की जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं अगर हम चालू करेंगे तो हम, अब लोग बोलेंगे भैया कि कोई अगर रिमोट एरिया है तो वहां पर लोग आएंगे तो वहां पर गंदगी होगी, फैलेगी, तो भाई अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ ट्रेनिंग की कमी है, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं तो वो चीजें नहीं हो सकती हैं, वह चीजें अच्छे से भी हो सकती हैं। तो कुछ हमारे इसमें चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के थोड़े बहुत, तो वो ठीक हो सकते हैं। सेफ्टी कंसर्न थोड़ा सा है कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो इस प्रकार के अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है किसी भी लेवल पर तो उसको हम मीट आउट कर सकते हैं कि हाँ सेफ्टी के लिए क्या क्या मिनिमम प्रिकॉशन रखना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है, सिर्फ ध्यान की बातें हैं कि किस प्रकार से हमारे को एक्ट करना है।
और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सीधी सी बात है कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग रहेगा तो हम एनवायरनमेंट जहां पर जाएंगे उसको हम गंदा नहीं करेंगे, कचरा नहीं करेंगे। अगर जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो भी ट्रेनर है, वो अगर प्रॉपर उनको इंस्ट्रक्शन देगा तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। अब यहाँ पर क्या क्या चाहिए अगर हमें ये डेवलप करना है, तो पहला गवर्नमेंट का सपोर्ट। ऑलरेडी गवर्नमेंट की ओर से बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, कई जगह एडवेंचर को डेवलप किया जा रहा है। अगर आपके आसपास कोई अच्छा स्पॉट है वहां पर अगर हम लोकेट करके गवर्नमेंट से हम बात करें, तो वहां के डीसी से हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, तो वो सपोर्ट करते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर, जब वहां पर बाहर के लोगों का आना बढ़ेगा, आवाजाही बढ़ेगी, तो प्राइवेट सेक्टर भी वहां पर आएंगे और वो आपका हेल्प कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर हम भी आएंगे। अगर हम एज अ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, अगर हम कुछ एक काम चालू करते हैं तो हम ये कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिसेस जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सके वो भी हम देख सकते हैं, और अच्छे से डेवलप करेंगे तो लॉन्ग टर्म इसका ग्रोथ भी आएगा। और स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे स्किल्स हम इसमें डेवलप कर सकते हैं। अब कैरियर इन एडवेंचर स्पोर्ट्स, इस पर थोड़ा सा हम एक टॉपिक पर बात करते हैं कि जॉब्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जॉब्स सीधी सी बात है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, हाइकिंग, काइकिंग, इसमें एडवेंचर गाइड, जैसे हमने ग्रुप बनाया कि हम हाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और हम ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, तो गाइड्स लगेंगे। सिंपल लोग हैं जो रोज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनके लिए छोटे छोटे क्या बोलते हैं हम चेन्स बनाए कि 3 से 4 किलोमीटर मैक्सिमम चलना है, जाकर के हॉल्ट करना है, आराम करना है। तो ये गाइड जो होंगे, गाइड प्रॉपर गाइड करेंगे। और उसके बाद आता है आपका आउटडोर एजुकेटर, कि ये जो आउटडोर एजुकेटर हैं, ये पहले अगर मान लीजिए कुछ ट्रैकिंग कठिन हो तो वहां पर किस प्रकार से सरवाइव करना है, कैसे पानी पीना है, नाश्ता कैसे रखना है, ये सब एजुकेटर हो सकते हैं। फिर एडवेंचर टूर ऑपरेटर, ये सारे टूर की प्लानिंग कैसे होगी, टूर 1 दिन का है, 2 दिन का है, 10 दिन का है, किस ग्रुप के लिए, ग्रुप के हिसाब से कितना उसमें डिफिकल्टी होगा, तो इसका प्लानिंग और इस ट्रिप्स को चलाने के लिए लोग लगेंगे, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर एक्सपीडिशन लीडर, अगर एक्सपीडिशन हमने कोई प्लान किया है तो कौन इसको लीड करेगा। एडवेंचर गाइड सिंपल गाइड, पर एक्सपीडिशन अगर कोई खास करते हैं कि हमारे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, छोटे छोटे ग्रुप में बांट के लेके जाएंगे, तो इनके लीडर्स। फिर इस प्रकार के अगर कोई टूर हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशन, फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर की किस प्रकार से फर्स्ट एड ऐसे बंदों को दिया जाए, और अगर हो जाए तो किस प्रकार की तैयारियां रखी जाए कि उनको फर्स्ट एड जल्द से जल्द मिल जाए और कोई मिस हैपनिंग ना होने पाए। उसके अलावा नॉर्मली लोग जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, और लोग सेल्फी लेते हैं, तो इसके लिए भी ट्रेंड और एजुकेट करना कि फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, या अगर आप सेल्फी भी ले रहे हो तो ऐसी खतरनाक जगहों में किस प्रकार से अपनी फोटो सेल्फी लेना, या फोटोग्राफर हो जो इनके लिए, वीडियोग्राफर जो इनकी टूर की पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सके, ऐसे लोग। और फिर आउटडोर राइटर, जर्नलिस्ट, नॉर्मल सी बात है, हम जहां भी घूमने जा रहे हैं, कई बार हमने अपने प्रधानमंत्री को भी सुना है कि भैया उन्होंने एक इनिशिएट किया कि कोई अगर अच्छी जगह में जा रहे हैं, पहले फोटोग्राफी बैन थी, उन्होंने बोला भैया फोटोग्राफी को फ्री करो, लोग सेल्फी लें और सेल्फी लेके डालें कि हम यहाँ पर घूमने गए, ताकि और लोग को मालूम पड़े। तो वैसे ही जो जर्नलिस्ट है, राइटर हैं, वह भी इस बारे में लिखें कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती है। ब्लॉगर्स हैं, तो ऐसे लोग भी जो सही ढंग से उसको प्रेजेंट कर पाए, लिख पाए, वह वहां पर होना चाहिए। अब वैसे ही अगर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बोले, अब इन्हीं एडवेंचर स्पोर्ट्स में अगर कॉम्पिटिशन जोड़ दिया जाए तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हो जाएंगे, तो इसमें भी बहुत सारे जॉब के संभावनाएं हैं। प्रोफेशनल एथलीट, जैसे हम नॉर्मल गेम्स के लिए एथलीट और कंपटीशन के लिए एथलीट तैयार करते हैं, स्पोर्ट ट्रेनिंग स्पेसिफाइड लगती है, वैसे ही अगर एक्सट्रीम स्पोर्ट एथलीट तैयार कर रहे हैं ट्रेनिंग। उसके अलावा कोच एंड ट्रेनर, कि किस प्रकार से स्किल्स के लिए कोचिंग एंड ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के लिए, अदर देन एडवेंचर स्पोर्ट। स्पॉन्सरशिप मैनेजर, क्योंकि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और यहाँ पर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स और महंगी जो है हमको सामग्री लगेगी, तो उसके लिए स्पॉन्सर्स चाहिए। जैसे कि अभी जो था माउंट एवरेस्ट, जो भी जाता है माउंट एवरेस्ट में क्लाइंबिंग के लिए, उनको हमेशा पहले एक स्पॉन्सर लगेगा ही, बिना स्पॉन्सर के वो जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च लगता है। पहले बेस कैंप तक जाने पे भी स्पॉन्सर्स लगते थे, पर अब कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, उसको एडवेंचर स्पोर्ट्स बना दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो अगर चाहे
तो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक के ट्रैकिंग या जा करके वापस आ सकता है। तो इस प्रकार से जो है स्पॉन्सरशिप का भी आवश्यकता पड़ता है। तो स्पॉन्सरशिप कैसे लाया जाए, कोई अगर अच्छा एथलीट है उसके लिए क्या किया, तो ये भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। सेफ्टी कंसल्टेंट, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स के अलावा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में सेफ्टी कंसल्टेंट, जहां पर भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो सेफ्टी कैसे इंश्योर होगी वह दिया जाए। इक्विपमेंट डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा इंडिया आज स्वतंत्रता के बाद 76 साल हो रहा है, 76 ईयर्स हो रहा है, और हम कई सारे इक्विपमेंट्स हम बाहर से मंगवा रहे हैं। अभी भी हमारे पास प्रॉपर रोप, अगर उसके आप इक्विपमेंट देखें, कैराबाइनस अगर आप देखें, उसके जो स्लिंग्स होते हैं वो देखें, कड़िया देखें, हम बाहर से लेते हैं। तो कुछ हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का भी एक क्या बोलते हैं ऑप्शन है कि वो कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो ये कर सकते हैं। फिर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कमेंटेटर, जैसे कि स्पोर्ट्स कमेंटेटर लगते हैं वैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कमेंटेटर और उनके जर्नलिस्ट भी लग सकते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए एजुकेशन और ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, हिमालय में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के फाउंडेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें नियर अबाउट 75% सीट्स आर्मी वालों के लिए फिक्स रहती है, सिर्फ 25% सीट्स जो सिविलियंस हैं उनके लिए रहती है। वहां पर इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, 3 या 4 चरणों में नॉर्मली क्या बोलते हैं इसकी ट्रेनिंग चलती है। अगर हम सिर्फ माउंटेन क्लाइंबिंग, रैपलिंग की और इसकी बात करें तो यह पहला होता है बेसिक कोर्स, दूसरा होता है आपका एडवांस कोर्स। जब ये दोनों कर लिया, तीसरा फिर कोर्स होता है आपका ट्रेनर कोर्स, और जब ये तीनों कर लिया फिर एक होता है रेस्क्यू कोर्स। इस प्रकार से 4 स्टेज पर लगभग 1-1 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पर चलती है। वैसे ही ट्रेनिंग और भी जगहों में अवेलेबल है, और ये अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए भी अवेलेबल है। अगर अरुणाचल प्रदेश के दिरांग की बात की जाए, वहां पर भी एक इंस्टीट्यूट है जो हर प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, पैरा जंपिंग, इन सब की ट्रेनिंग देता है। यहाँ से ट्रेनिंग लिया जा सकता है। और मैंने ये भी देखा है कि जो हिमालयन बेल्ट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां के जो लोकल बच्चे हैं वह इस प्रकार के कोर्स करके वहां पर बहुत ही अच्छा क्या बोलते टूर ऑर्गेनाइज एडवेंचर स्पोर्ट्स का कर रहे हैं। कैंपिंग के लिए स्पेशलाइज्ड वो ग्रुप से या फैमिली से बात करते हैं और उनके कस्टमाइज प्लान के हिसाब से पूरी प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, और पर हेड 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक के चार्ज करते हैं। और वाइल्डरनेस कैंपिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये आपके जो भी क्लाइंट है वो जिस प्रकार के रिक्वायरमेंट देता है उसके हिसाब से वो प्लानिंग करके उसको देते हैं। अगर वो बोलेंगे हमको सिर्फ ट्रैकिंग करना, ट्रैकिंग होगा, हाई एल्टीट्यूड हाइकिंग चाहिए तो हाई एल्टीट्यूड हाइकिंग लेके आएंगे वापस। हमको सिर्फ क्या बोलते हैं कैंपिंग अच्छा होना चाहिए, कैंपिंग देते हैं। फूड की अरेंजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट करते हैं, और बहुत अच्छे से वो लोग क्या बोलते हैं वहां पर टूरिज्म के से ही अच्छा क्या बोलते हैं पैसे बना रहे हैं। हमारे HUPM के कुछ बच्चे थे जो BPED और MPED किए हुए थे J&K के, उन लोगों ने वहां पर जाने के बाद उस प्रकार के कोर्सेज का हमने उन लोग को बात हुआ तो वो लोग अपना नौकरी और एम्प्लॉयमेंट जो उनका चल रहा है उसके अलावा भी अब वो इस प्रकार के टूर को प्लान करके एक अपना इनकम जनरेशन प्लस अपने लोकल एरिया की इकोनॉमी और लोकल एरिया के जो लोग हैं उनके लिए इकोनॉमी जनरेशन का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फील्ड है। अब इसमें स्किल्स और क्वालिटीज हमारे को क्या क्या लगेगी, अगर एज ए ट्रेनर मैं अगर एंट्री करता हूं और किसी और को भी अगर मैं एंट्री कराता हूं तो फिजिकल फिटनेस एंड स्टेमिना जो कि BPED वाले के पास नेचुरल है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। अगर मैं SWOT एनालिसिस करूं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, तो स्ट्रेंथ हमारी क्या, फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स, हम टीम स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये हमारे में होता है। फिर एबिलिटी टू वर्क इन चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स, चैलेंजिंग एनवायरमेंट में काम करने की क्षमता, जिसका फिटनेस अच्छा है, डिसीजन स्किल्स अच्छा, तो वो ये काम अच्छे से कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल, हम गेम्स खेलते हैं, रूल्स के हिसाब से खेलते हैं, तो हमारे को सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करना और दूसरे से करवाना अच्छे से आता है। बस इसको हम चैनलाइज कर ले कि हमारे कुछ इससे इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल सके। फिर अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अपने लिए भी और दूसरों को ट्रेन करके उनको लेके जाने के लिए भी, पार्टी को भी। फिर पैशन फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, ये क्वालिटी स्किल्स हमारे पास में है। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, नॉर्मली हम अपने स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स हम लगातार प्रैक्टिस करके डेवलप करते हैं। हमारे को जरूरत है तो सिर्फ इस चीज को चैनलाइज करके कैसे हम इसका इकोनॉमिक बेनिफिट अपने लिए,
अपने लोकल एरिया के लिए, अपने कंट्री के लिए ले सकते हैं। ये हमारे को एप्लीकेबिलिटी को हमको इसकी सीखना है। फिर एबिलिटी टू वर्क विद डाइवर्स ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के साथ में कैसे काम किया जाए, यह हमारे को करना चाहिए। और इसमें रेंजिंग आपके ऊपर में है। अगर हम इसको एज अ इंस्टीट्यूट चालू करते हैं कि हम कोई एक टूरिज्म मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट अगर हम रेडी करते हैं तो ये हम काम कर सकते हैं। अब इसमें अगर पीटी और पीटीआई की बात करें तो पीटी और पीटीआई भी जो स्कूल के बच्चे हैं जो पिकनिक लेकर के जाते हैं, बहुत सारे स्कूल्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी टूर ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। और टूर ऑपरेटर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों का पैकेजेस दे रहा है और उनको लेकर के जाता है। नॉर्मली ये आपका हिमाचल साइड में लेके जा रहे हैं, उड़ीसा साइड में लेके जा रहे हैं और ये सेट कर रहे हैं, सिर्फ लेके जाना घुमा करके आ जाना। पर अगर फिजिकल एजुकेशन वाले साथ में हाइकिंग ट्रैकिंग का कुछ अच्छे सीनिक व्यू हो, वहां की फोटो के साथ में अगर करें तो ये हमारे फिजिकल एजुकेशन के बच्चे भी इस चीज के ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा फील्ड है ये। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स किस प्रकार की है, आप अपनी टीम कैसे रेडी करते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपनी जो है भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक अच्छा आप क्या बोलते हैं अपने लिए रोजगार का जनरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर डिपेंडेंट ये है कि आप जितना अच्छा सर्विस देंगे उतना अच्छा आपका क्या बोलते हैं यहाँ फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से हम काम अच्छे से कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं कुछ गेम्स की बात करूं, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, अगर आपके आसपास छोटे मोटे माउंटेन्स एंड रॉक क्लाइंबिंग के कुछ हैं और आपने अगर ट्रेनिंग ले ली है तो पिकनिक के समय में बहुत ही सेफ जगह जहां पर हो वहां पर सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ में बच्चों को रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग सेफ्टी के साथ में आप अच्छे से करवा सकते हैं, प्रॉपर मैनेज करके लेके जा सकते हैं। स्कूल के बच्चों को पिकनिक ऑफर करना, कॉलेज के बच्चों को पिकनिक ऑफर करना, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को पिकनिक ऑफर करना, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो मैंने देखा बेंगलोर, पूना, बॉम्बे, कलकत्ता, ये अपने एम्प्लॉयज के लिए भी एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले पैकेजेस चाहते हैं कि थोड़ा सा इनके मोनोटनी ब्रेक करने के लिए कुछ उनको पैकेज दिया जाए और इससे टीम बिल्डिंग भी अच्छी होती है। तो कैसे एज ए टीम क्या बोलते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ही लाइट कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करके कोई ऑपरेटर उनको दे दे जिसमें एम्प्लॉय सेफ भी हो, प्लस उनका कुछ एडवेंचर स्पोर्ट के थ्रू रिफ्रेशमेंट भी हो जाए, एंजॉयमेंट भी हो जाए। तो इस प्रकार से भी क्या बोलते हैं बहुत सारे लोग अब ये चाहते हैं। और अब छोटी छोटी जगहों में भी जो स्कूल वाले हैं वो प्रोफेशनल गाइडेंस पिकनिक के लिए, टूर्स के लिए चाहते हैं, कॉलेजेस वाले चाह रहे हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, आईटीआई के बच्चे हैं, ये पैकेजेस चाहते हैं, इंस्टीट्यूट भी चाहता है और बच्चे अपना अलग से ग्रुप के द्वारा भी ऐसे पैकेजेस चाहते हैं। अगर हम एडवेंचर स्पोर्ट के थ्रू अगर उसको ऑफर कर सकें, एक एला कार्टा आपका बनाया जाए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्टिविटीज ऑफर करता है, ट्रैकिंग, हाइकिंग, जिप लाइनिंग, रिवर क्रॉसिंग, आपका एफसेलिंग, एफसेंडिंग, इस प्रकार से। और हमारे पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भी है, सेफ्टी भी अच्छी रहेगी। अगर आसपास में कहीं वाटर बॉडी है तो वाटर के जो आपके स्पोर्ट्स हैं, सर्फिंग है, बहुत सारे हैं, जॉर्बिंग है, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज हम दे सकते हैं। उसके चार्जेस ये हैं। तो हम वो हमारा जो एक अगर इसको हम सीखें तो हमारे जो बच्चे उनको एक अपॉर्चुनिटी और मिलेगी सिर्फ नौकरी के अलावा। और यहाँ जो मैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि बीपीएस और एमपीएस जो कोर्स खुल रहे हैं, ये कोर्स ओपन फॉर ऑल है। यहाँ पर सिर्फ टीचर्स नहीं बनाए जा रहे हैं। मुझे बड़ा कभी कभी दुख होता है कि बहुत सारे जगह में बीपीएस कोर्स में भी लेसन प्लान डाल दिया गया। टीचर, आप टीचिंग को एक भाग रखिए, इलेक्टिव भाग रखिए। उसके अलावा आप क्या बोलते हैं बीपीएस कोर्स के थ्रू बच्चों में स्पोर्ट्स इकोनॉमी, स्पोर्ट टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इस प्रकार की चीजें कि जिससे वह डायरेक्ट क्या बोलते हैं बिजनेस या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप खोल सके और उससे वह काम कर सके। बीपीएस के लिए मेरा जो एक बहुत सुझाव है कि यहाँ पर हमको ध्यान देना चाहिए। स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, लोकल लेवल पर क्या बोलते हैं किट की मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं। उसमें आपका एडवेंचर भी एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा भाग है जो अभी अनटच्ड है अगर देखा जाए। और हमारी इकोनॉमी में देखा जाए तो टूरिज्म के हिसाब से अभी एडवेंचर स्पोर्ट का बहुत बड़ा भाग, ठीक है,
मैक्सिमम जगह बाहर के लोग आकर के काम कर रहे हैं, पर अभी भी यहाँ पर जो हेड रूम है इकोनॉमी में एडवेंचर स्पोर्ट का फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए बहुत बड़ा हेड रूम अभी भी हमारे लिए अवेलेबल है, जिसको हम एक्सप्लॉइट करके हमारे जो BPES के जो बच्चे हैं, फिजिकल एजुकेशन के जो बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेशन कर सकते हैं। तो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स, और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, वहाँ का जियोग्राफिकल फीचर्स क्या है, कैसे हैं, और किस प्रकार से आप अलग अलग इंस्टीट्यूट को या इंडिविजुअल ग्रुप्स को या अलग अलग एज ग्रुप्स को आप कैसे अट्रैक्ट करके उस जगह पर आप कैंपिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, कुछ बेसिक जो क्या बोलते हैं एक्टिविटीज होती है, उसको कैसे आप ऑफर करके अट्रैक्शन करके अपना एक जॉब क्रिएट अपने लिए और साथ साथ अपने आसपास के लोग भी के लिए भी आप यहाँ पर जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब जैसे आसपास कोई गुफा है, भले छोटी गुफा हो, छोटी सी गुफा हो, पर वहाँ का एक एनवायरनमेंट है, अगर वो इंटरेस्टेड है नेचर से, तो उस गुफा को थोड़ा सा एक्सप्लोर करे, देखे, और उसकी अगर प्रॉपर फोटो डाले, तो लिटरली पूरे वर्ल्ड से लोग कहीं ना कहीं जाने के लिए एकदम राजी रहते हैं। अब जैसे बाइकिंग है, अगर हम लद्दाख की ओर देखें, लेह लद्दाख में बाइकिंग, मनाली, दिल्ली, लद्दाख, यहाँ पर बाइकिंग बहुत फेमस है। बाइक से वहां पर राइड करना, तो वहां पर मोटरसाइकिल जो है वह रेंट पर दी जाती है, और पूरे लेह में आप क्या बोलते हैं जो पॉइंट्स हैं, और उनके बहुत अच्छे अच्छे फोटोज अवेलेबल हैं कि कैसे आपको कहाँ कहाँ जाना है, कैसे रुकना है, क्या क्या चीजें आपको करना है। ये भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है कि बाइक रेंट पे लीजिए, लेके जाइए, या अगर आपकी खुद की बाइक हो, खुद की बाइक, तब आप उससे भी क्या बोलते हैं वहां पर जा सकते हो बाइक से, और वहां का एडवेंचर और सीनिक व्यू और बहुत सुंदर सुंदर फोटोज अवेलेबल है। अब वहां के जो लोकल्स हैं वह इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कोई बाइक में रेंट में दे रहा है, कोई टूर गाइड है, कोई क्या बोलते हैं ऑपरेटर है, कोई क्या बोलते हैं होटल के साथ में लाइनअप कर रहा है, कोई पैकेज बना रहा है। पिथौरागढ़ गया था, वहां पैराग्लाइडिंग का सिंपल सा वहां का लोकल बंदा, एक बहुत ही छोटा सा पहाड़ी का एरिया था जहां पर हवा उल्टी बहती थी, तो उसके ऊपर पैराग्लाइडिंग बहुत अच्छी होती थी। उसने अपना एक क्या बोलते हैं कोर्स खोला हुआ है, पैकेज देता है, वो 3 दिन से लेकर के 7 दिन तक का पैकेज देता है। या अगर आपको सीखना नहीं है, सिर्फ आपको पैराग्लाइडिंग एंजॉय करना है, तो एक आदमी जो पायलट है वो पैराग्लाइडिंग करेगा, साथ में एक आदमी को बांध करके आपको पैराग्लाइडिंग का एंजॉयमेंट देगा। उनके सबके रेट तय हो गए उसके, और वो बंदा कभी खाली नहीं बैठता, कंटिन्यूअसली पैराग्लाइडिंग वहां पर करवा रहा है। केविंग का जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ही क्या बोलते हैं बहुत ही शानदार क्या बोलते हैं रिसर्चर हैं, वो रिसर्च के साथ साथ इंस्टीट्यूट्स को भी ऑफर कर रहे हैं कि पिकनिक में जाते हो तो उससे अच्छा है कि केविंग करो, केविंग में जाओ, केव को समझो, केव की स्पिलेलॉजी को समझो, जो बायो के जो स्टूडेंट्स हैं, जूलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डाइवर्सिटी कैसे होती है, कैसे उसका अध्ययन किया जाए। और उन्होंने, डॉक्टर जयंत विश्वास ने कई ऐसे भी स्पीशीज खोजे हैं जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं, पहली बार खोजा गया। उस केव में ऐसी एक फिश मिली है, 1.5 से 2 इंच की फिश होती है, उसकी पूरी स्किन ट्रांसपेरेंट है, अगर उसको डिश में रख दिया जाए तो आप उसके दिल को धड़कते हुए देख सकते हो। उसकी जियो टैगिंग हो चुकी है। इस प्रकार से भी क्या बोलते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के फायदे मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका एक होता है ओरिएंटरिंग स्पोर्ट्स। ओरिएंटरिंग स्पोर्ट्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इवन चाइना तक में फेमस है, जिसमें होता यह है कि आपका 10 या 20 पॉइंट बनाए जाते हैं और उसको नक्शा बनाया जाता है। नक्शे में वो पॉइंट को सेट कर देते हैं, वहां से आपको टैग्स लेकर के आने रहते हैं। जो बंदा जब वो दौड़ चालू होता है, दौड़ चालू होने पर ही उसको नक्शा दिया जाता है, और पॉइंट्स में उसके पॉइंट्स लोकेट है कि ये 20 या 10 पॉइंट में टैग्स हैं। अब आपको दौड़ चालू होगी, आपको उसी समय नक्शा मिला है, आपको दौड़ते दौड़ते डिसीजन मेकिंग करना है कि मैं किस किस पॉइंट को पहले टच करूं, किसको बाद में करूं मेरे को। और यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स पाथ नहीं है, आपको अपने हिसाब से दौड़ करके टैग लेकर के वहां पर पहुंचना है। तो जो सबसे पहले पहुंचेगा वह जीतेगा। तो अब ये ओरिएंटरिंग में आपका रनिंग भी होता है, इसमें बाइक से भी होता है, साइकिल से भी होता है, माउंटेन में भी होता है, माउंटेन बाइकिंग भी होता है। तो ओरिएंटरिंग स्पोर्ट्स, और बहुत कम लोगों ने
स्पोर्ट्स नक्शे बनाए हुए, इसके स्पेसिफाइड नक्शे बनते हैं जो बहुत अच्छे कर सकते हैं, और वर्ल्ड के बहुत सारे लोग इसको करना चाहते हैं। जैसे कि लद्दाख में जो बाइकिंग होती है, मोटरसाइकिलिंग होती है, उसके लिए वर्ल्ड के लोग वहां पर सिर्फ बाइकिंग करने आते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि लद्दाख में या आपके उत्तराखंड में जब सर्दियों में नदियां जम जाती हैं, तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, कनाडा के लोग सिर्फ वो जमी हुई नदी पर ट्रैकिंग करने आते हैं। वो नदी पर जमी हुई 20-30 दिन के लिए ट्रैकिंग करते हैं, कैंपिंग करते रहते और जाते हैं। उनको नया नया टेरेन चाहिए। वैसे ओरिएंटेरिंग के लिए अलग अलग टेरेन में उनको करने का जो एक्सपीरियंस है, वो उसको करने के लिए लोग क्या होते हैं, फॉरेनर्स भी वहां पर पैसा देने को राजी हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आप उनको प्रॉपर सुविधाएं दे सकें और साथ में इस प्रकार का एडवेंचर जो टूर है उसका ऑर्गेनाइज कर सकें, तो ये हो सकता है। और कुछ स्पेशलाइज्ड चीजें, जैसे कुछ ट्रैकिंग का जो आपका एरिया सेटअप है, जो डैम है, उसका जो रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर एरिया के आसपास बहुत अच्छे क्या बोलते हैं ट्रैकिंग के स्पॉट्स हैं। तो यूथ हॉस्टल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का चैप्टर बनाया हुआ है। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर हफ्ते, अभी जैसे शरद पूर्णिमा थी कल, तो उनका एक ट्रैकिंग ऑपरेट हो रहा है रात को। वो ट्रैकिंग वहां पर जंगल में लेकर के जाएंगे, शरद पूर्णिमा में ट्रैकिंग होगा वहां पर, और एक स्पॉट पर जाकर के वो लोग खीर खाएंगे और खीर खा के फिर वहां से वापस आएंगे। तो ये टूर ऑपरेटर्स केवल 500 रुपए पर हेड में एक स्पॉट से आपको बस से लेके ट्रैकिंग स्पॉट पर जाएंगे। ट्रैकिंग आपको कम से कम 3 या 4 घंटे की ट्रैकिंग करवाएंगे, खीर खिलाएंगे और वापस लाके आपको उस स्पॉट पर छोड़ देंगे। तो ऐसा भी लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है और नेचर के साथ बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। यूथ होटल्स के साथ भी अगर आप ऐड होते हैं तो आपको सीखने जानने मिलेगा और आप अपने लोकल एरिया की ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जो पूना के आसपास बहुत सारे लोग इस प्रकार के टूर ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट के थ्रू। कुछ फोर्ट हैं, कुछ वहाँ के सीनिक व्यू हैं, कुछ वाटरफॉल्स हैं, वहां पर किस प्रकार से। फिर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में वो लोग काइटिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब भी सह्याद्री के जो रेंज है वहां पर कर रहे हैं। हम लोग एनसीसी के थ्रू एक तो शिवाजी ट्रैक होता है, ये बहुत ही 30-40 साल से भी ज्यादा से चल रहा है, जिसमें क्या बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट क्या ट्रैकिंग होती है। पर डे 10 से 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग चलती है। और ये ट्रैक क्या होता है, रोडों से, जंगलों से, खेतों से, खेत के बीच से जाती है और 5 से 6 दिन की ट्रैकिंग होती है और पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं। एक पॉइंट से हम मूव करते हैं, दूसरे पॉइंट पहुंचते हैं, वहां पर नाइट हॉल्ट लेते हैं, प्रोग्राम होगा, वहां का जो कल्चरल है वो सब दिखाया जाएगा। जो बाहर से बच्चे अगर वो कुछ दिखाना चाहें, अच्छा अपना कल्चर प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलता है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए मार्च हो जाते हैं और ये बहुत ही शानदार होता है। और नियर अबाउट कम से कम 30 टीम्स ऑल ओवर इंडिया से 400 की इस ट्रैकिंग को हर साल करती है। वैसे ही ट्रैकिंग के बहुत सारे जो है ये एनसीसी की ओर से हो रहा है। वहाँ लोकल ऑपरेटर्स भी अगर आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वो बोलेंगे आप हमारे फोन करो, हम आपको लेके जाएंगे। और कुछ लोग के साथ मैंने खुद भी ट्रेनिंग की हुई है, जो माउंटेनिंग और क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ ट्रेनिंग की है, वो लोग उसको ऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा ऑपरेट करते हैं। वो पैकेज देते हैं कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो हम आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट लेके जाएंगे, इस पॉइंट के बीच में यहाँ क्लाइंबिंग के लिए, माउंटेनिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ पर आप जा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, या कुछ अगर एक्टिव स्पोर्ट्स है वहाँ पर आप जा सकते हैं। हरिहर फोर्ट कहता है कि चढ़ाई एकदम 70 डिग्री पर चढ़ करके हम जाते हैं, बहुत सेफ है, पर फोटोज में देखो तो ऐसा खतरनाक लगता है कि लोग सोचते हैं यार क्या ही चीज होगी। तो ऐसी बहुत सारी जगह हमारे इंडिया में है। अगर मैं देखूं नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट, आपका बंगाल बेल्ट, सिक्किम बेल्ट, वहां पर कई नेचर के इतने सुंदर सुंदर क्या बोलते हैं स्केप्स हैं जहां पर हम काम कर सकते हैं और यह एडवेंचर स्पोर्ट्स को हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा अनटच्ड फील्ड है, इसमें अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है। अगर इसको भी हम बीपीईएस एक कोर्स उसके थ्रू सेटअप कर सके। और दूसरा बीपीएड के जो कोर्स चल रहे हैं टीचर एजुकेशन, उसमें ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट आता है, टूर ऑर्गेनाइजेशन, कैंपिंग, जो थोड़ा बहुत कुछ सिलेबस में पहले था, कुछ ने हटा दिया, फिर भी अभी वो है वहां पर। एक बीपीएड के बच्चे को टीम लेकर के मूव करना, टीम लेकर के जाना, ऑर्गेनाइज करना, छोटे बच्चों की सब जूनियर 14 साल से नीचे के
बच्चों की टीम लेकर के मूव करना जाना, खिलाना, उनको रात में क्या बोलते हैं कंपटीशन के लिए रोकना। तो एक अगर हम इस प्रकार का उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं 8-10 दिन का, तो उनको भी एक क्या होता है इंसाइट मिलता है कि कैसे मूव करना है टीम के साथ में। तो ये एक एडिशनल भी हो सकता है और सेट भी हो सकता है। दूसरा एक मेरा सुझाव ये भी है कि बीपीएड के जो बच्चे हैं, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें एड ऑन कोर्सेज का बड़ा जोर दिया गया है। तो हमारे जो बच्चे हैं जब अपना बीपीएड बीपीएस कोर्स कर रहे हैं, तो ये जो एडवेंचर इंस्टीट्यूट है, थोड़ा इनको इसके बारे में जानकारी दी जाए कि जैसे एनआईएस कर रहे हैं वैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूट जो होते हैं वह भी क्या बोलते हैं यह कोर्सेज कर सकते हैं एज अ एड ऑन कोर्सेज, जो उनका एनहेंसमेंट करेगा, कहीं ना कहीं प्रोफेशनली उनको डेवलप इस स्पोर्ट्स के लिए भी कर सकता है और इस फील्ड में भी कुछ एक नया सीखने का उनको मौका मिल सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आज थोड़ा सा मैं अपना कंक्लूजन में आना चाहूँगा कि हमने आज एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात की, उसका इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की बात की, क्या क्या देश के लिए हमारे लिए भी अच्छा हो सकता है, किस प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात की, और फिजिकल एजुकेशन अभी ये पूरा फील्ड खाली है। बहुत सारे बाहर के जो लोग हैं वो अभी नहीं आए हैं, कुछ होटल्स वाले, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाले कुछ खास पॉइंट्स को डेवलप करके वहां पर काम कर रहे हैं लोकल एरिया पर, बहुत अच्छा नहीं है। तो हमारे अगर फिजिकल एजुकेशन वाले कुछ अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन रेडी करके इस प्रकार एक संगठित रूप से काम कर सकें, तो फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए एक बहुत ही शानदार, चैलेंजिंग और एक अर्निंग फील्ड हो सकता है। इस पर हम ध्यान दे सकते हैं और इससे हमारा तो फायदा है ही, साथ में हमारे जो लोकल एरिया के लोग हैं, लोकल इकोनॉमी है, उसका भी बहुत फायदा है। कल्चरल एक्सचेंज के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये मेरा एक टॉपिक था जिसमें मैंने अपने विचार रखे। अब अगर कोई कुछ इसके बारे में पूछना चाहे या कुछ अपना इनपुट देना चाहे ताकि मेरा भी कुछ एनहेंसमेंट हो सके, प्लीज, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर, आपके जो आज का टॉपिक था उसके ऊपर आपने आलोचना की। अब हमारा जो सेशन है ऑलरेडी हमारा स्पीकर सर बोल दिए है, किसी का कोई सजेशन नहीं है। सर को यही बताना चाहते हो, आज हमारे बीच इस एपिसोड में मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार उपल सर, डॉक्टर सुब्रत मल्लिक सर, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट साइन, डॉक्टर प्रोफेसर परिमल देवनाथ सर, फॉर्मर प्रोफेसर जादवपुर यूनिवर्सिटी, एंड प्रोफेसर दिलीप कुमार बंदोपाध्याय सर, एंड सो मोर। पहले मैं सजेशन लूँगा आज की इस एपिसोड का डॉक्टर अरुण कुमार उपल सर से। सर, आज के एपिसोड के बारे में कुछ सजेशन है तो बताइए प्लीज सर। I am very happy that your organization has arranged a lecture related to physical education and sports, and which is getting very popular. And number of institutions arrange these adventure activities for the benefit of their students. And I would like to congratulate Mr. Omji for giving a very elaborate lecture on all and providing all the details to the students so that they get familiar with all these activities. These activities, besides providing fun and enjoyment, also give them a lot of courage to, when they participate in such activities. And from my side, convey a big congratulations to Mr. Omji for giving a wonderful lecture. Thank you very much. Thank you very much, sir. Charan Spars. Thank you, sir. Thank you for your nice session and valuable session for us. And now we are going to the Professor Porimal Devnath, sir. Sir, please say regarding our today's topic and discussion. Professor Porimal Devnath, sir, please. Thank you very much. I must congratulate the speaker of today's speaker, who has nicely presented a topic which itself is adventurous. Now, what I think about adventure sports, firstly, there are so many problems and impediments or bottlenecks, whatever we call it, to
start these adventure sports in different educational institutions. Facilities are not proper, infrastructure is not there. Now, as my sir, Professor Uppal told, it may give enormous enjoyment and develop courage, fearlessness, etc. No doubt about it. And what I feel, there should be a proper education. As today we are educated by Professor Omji, there should be such proper education. It may find place in the curriculum also, maybe optional, not compulsory. There should be opportunities and scope for the students who are fearless, who have courage. And if we just observe in all educational institutions, there are some students who love to face challenges of nature. They don't get the opportunities. So for them, there should be orientation program, different types of orientation program. How many adventure sports are there? How many extreme competitions are being held? We do not know much of this. So for this, it needs proper education. Secondly, a very important thing is we need a very good sports policy. That in the sports policy, the educational institution, this adventure sports should find a place, important place. There should be proper budget allocation. Because in sports educational institution, regarding conducting of sports, we have very scanty budget provision. Now, not to think about the budget provision for the adventure sports, this should be taken into account through a well-designed and sports policy. The state government and the central government should provide sufficient budget, and there should be some demonstration program on adventure sports in every educational institution, not only for the BPEd and MPN students. In the general colleges, if we just have some experience, we'll find that there are good number of students who love to take part in adventure sports, but as there is no such opportunities and infrastructure, they cannot take part. There are some institutions who are providing this training, very good, but it is not open to all. It is not open to all because in such places where these facilities are being provided, not always the general students finds the opportunity to go and join this. So these are some of the points. Proper education, maybe curricular, compulsory or optional, if it is not possible to make it compulsory, but it may be additional or optional. Then adequate and proper sports policy, budget allocation, orientation program, demonstration program for general students. So if we can arrange all these things, I think this adventure sports will get more and more importance to the students who are undergoing different courses in professional as well as general educational institutions. This is all about, as a novice person in this field of adventure sports, what I felt I just shared with you. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your nice session and valuable session. Now we are going to look forward another distinguished previous resource person are there, Dr. Subroto Mollik sir. I request Dr. Subroto Mollik sir, please say something. नमस्कार सर। नमस्कार। सबको शुभ संध्या और सबको शुभ विजया, हैप्पी पोस्ट दशहरा। सबको बधाई हो।
और सबको मेरा शुभेच्छा है, नमस्कार। मैं बेसिकली स्पोर्ट्स डॉक्टर हूँ, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं था, इसीलिए मैं अभी रिटायर्ड हो गया। लेकिन जिस टाइम में थे उस टाइम में मुझे ऐसा कभी कभी एज ए मेडिकल डॉक्टर आई एम बीइंग इनवाइटेड विद पर्टिकुलर टीम्स लाइक रॉक क्लाइंबिंग। एक पर्टिकुलर क्लब है जो यहाँ पे कलकत्ता का साउदर्न साइड में है, वो सोनारपुर बोल के एक जगह है, वहां से अड़ोई क्लब। वो हमको रॉक क्लाइंबिंग का जो कैंप हुआ बहुत दिन पहले का, ये 2003-4 होगा, उसी टाइम में मैंने गया उन लोग के साथ, और मैं अपना भी बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स भी कर लिया उसी टाइम में। ये थोड़ा एडवांटेज मुझे मिल गया था, तो आई हैव डन इट। द मेन थिंग इज दैट ये जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, बिकॉज एडवेंचरस माइंड जिसका रहेगा मीन्स सबका ही है। हम लोग को जब भी कोई भी ह्यूमन का एडवेंचरस माइंड तो है ही, और नेचर में जो एडवेंचरस माइंड हम लोग को होता है, हम लोग पहाड़ में जाते हैं सीनारी ब्यूटी देखने के लिए, कभी कभी टूर लगाते हैं, फैमिली टूर करते हैं, आप जैसा बोला पिकनिक जाना, ये एकदम सही है, तो हम लोग बड़ा लाइक करते हैं। लेकिन बात ये है, जो मैंने ऐसा बोलूंगा जैसा डॉक्टर उपल साहब और डॉक्टर परिमल देवता ने जो बोला है, उसी का आधार में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो सच में जो पॉइंट्स उठाया, जैसा राइट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जब बच्चे लोग को थोड़ा एक्सकर्शन करके ले जाएंगे कई पहाड़ी जगह, कोई फॉरेस्ट एरिया, कुछ उन लोग को समझाएंगे जैसे ट्रेकिंग होता है, कैसा होता है, वो सब जगह में लेके भी जाते हैं कोई, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। एंड दे विल फील इंटरेस्टेड, बिकॉज नेचर के साथ हम लोग का एमलगेट करने का फुर्सत उतना छोटी उम्र से नहीं होता है। हम लोग को क्या होता है, स्पोर्ट्स को साइड करके हम लोग को एकेडमिक स्टडी जैसा जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जो भी है एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग को इतना प्रेशर दे रहे हैं। इन लोग को ये सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम होता है, सभी होता है, सब ये हम लोग ऐसा हो गया, जो क्या बोलेंगे, थोड़ा सा नेचर से हम लोग थोड़ा नेचुरल जो एजुकेशन है, नेचर एजुकेशन, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेचर हम लोग अभी देख पाते हैं, जब एक बच्चा देखते हैं, वो पहाड़ देखते हैं व्हाट्सएप में, नहीं तो क्या बोलेंगे फेसबुक में, ऐसा करके परिचय होता है नेचर के साथ ऐसा। लेकिन वो स्कूल में जाते हैं और रूटीन एक कल्चर में आ जाता है। दैट इज आई थिंक इट शुड ब्रेक, और स्कूल में थोड़ा कभी कभी एक्सकर्शनल टूर पे बच्चे लोग के लेके जाना पड़ेगा, और बच्चे लोग इंटरेस्ट होगा, पहाड़ देखेगा, जंगल देखेगा, तभी ना इंटरेस्ट आ जाएगा। जो जंगल में हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या है, पहाड़ इतना ऊंचा है, कहाँ चढ़ाई उतराई है, थोड़ा सा कैसा जाना पड़ता है, कैसा ये इमेजिनेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट आल्सो invites the feeling of getting adventurous mind को थोड़ा instigate करते हैं। तो दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई फील। सेकेंड है, आपने बोला है जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस कुछ हो जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्कूल का साथ कोई बंधन करते हैं, जो बोलेगा ऐसा करके, जो बच्चे लोग को कोई भी क्लास में, क्लास 8, क्लास 9, कोई भी ग्रेड का, उन लोग को लेके एक एक्सकर्शनल टूर करेगा, थोड़ा सा आप कभी एडवेंचरस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस, तो इन लोग स्कूल का साथ लिंक करेगा और स्कूल को थोड़ा उत्साह देगा, जो बच्चों लोग तो लेके जाएंगे ऐसा। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड, दिस इज माय सजेशन, दिस विल बी वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स। और जाने के बाद थोड़ा सा रॉक क्लाइंबिंग सिखाएगा, थोड़ा सा ये करेंगे, थोड़ा हल्का करेंगे, घुमाएंगे भी,
अच्छा वाला जैसा पिकनिक टूर टाइप का भी करेंगे, थोड़ा सा रहेगा नेचर के साथ थोड़ा कुछ. आई थिंक पीपल शुड गो एंड बच्चे लोग को भी थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन का चीज चाहिए. जैसा भी पढ़ाई करते हैं सारा दिन पढ़ते पढ़ते स्पोर्ट्स के साइड में भी नहीं जा पा रहा है. अभी सिलेबस भी बहुत ज्यादा है एकेडमिक, दूसरा सब्जेक्टिव. तो ये जगह से थोड़ा उन लोग को भी स्ट्रेस होता है. माइंड स्ट्रेस के लिए भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स आई थिंक दैट इज अ वे फॉर रिलैक्सेशन ऑल्सो. जैसा बहुत सा ऑफिशियल आदमी देखा है जो पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्रेकिंग में जाते हैं, थोड़ा हिली प्लेस में थोड़ा ट्रेकिंग गया, ये गया, तो इन लोग बड़ा एंजॉय करते हैं. आप जैसा बोला बाइकिंग, ये तो स्थल, जल और वायु तीनों जगह में घूमने में थोड़ा सा कैसा करके एंजॉय करें. इफ वी गेट particularly touched with this part of the nature, I think it is very much required now, and people are very much stuffed up with this particular stress, mind stress, and I think this is a good thing for every corporate official peoples, even the students and all people of our society, but it is not being cared very much. So particularly I feel the sports should be more linked with the students part, the officials, the college students, the school students, everything. There should be a sports environment, and sports will give them also good health also and a fresh mind also. That is a very important thing to rise in one's particular life to a certain extent, to do good work, to get freshened up, everything. This is a very good thing for the health part also. But it is, we are not very much inclined to that particular part of that importance. That is the thing. So I think I should, I have talked plenty. So it was a very nice lecture you have delivered, and it's a very nice, and I want this sort of discussions and seminars to take place more. And I think people are very much enlightened also, and with this particular adventurous sports, that this lecture what you have given, and thanks to you once again. That's the Thank you thing. very much. Thank you very much. Thank you. Thank I you, have Dr. one- Subhash. I have a question, Dr. Das. With your permission, may I ask? Please, ma'am, please. So it's a very, very basic question, but generally it comes in my mind even because it is not, adventure sports is not the part of curriculum. So I'm asking very much elementary question, like what are the key elements that distinguish adventure sports from traditional sports? Like bamboo rafting is a game of Kerala, then is it a traditional sports or adventure sports? So this sort of confusion just roam around the mind. Just please clear it, sir. अ वेरी सिंपल थिंग, जो वहाँ के नेटिव लोग कर रहे हैं उनके लिए ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, और अगर मैं बाहर से जाके उसको अगर एक्सपीरियंस है तो वो मेरे लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स है. अब अगर मैं बाहर से जाकर के वहाँ पर उसका कंपटीशन कर रहा हूँ, इफ आई एम कॉम्पिटिंग फॉर दैट ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड द लोकलाइट्स, देन दैट इज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स. सिंपल सी बात है. बहुत सारे एक्टिविटी कुछ Sir. ट्राइब्स करते हैं, वो ट्राइब्स के लिए वो सिंपल एक्टिविटी है. अब वो सिंपल एक्टिविटी को उन्होंने अपने फोक में जोड़ करके कुछ कंपटीशन टाइप का सेट कर लिया, तो वो उनके लिए उनका ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हो गया. पर अगर हम बाहर से जाके उसको करेंगे, हम उससे यूज टू नहीं है, फेमिलियर नहीं है. अगर हम सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं तो एडवेंचर स्पोर्ट्स है. पर अगर हम जाके उसका कोई स्पेसिफिक कंपटीशन हम फॉर्म कर लें तो वो हो जाएगा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, क्योंकि अब उसमें स्किल सेट लगेगा. कंपटीशन जीतने के लिए हम सिर्फ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हमको उसको जीतना है, तो हम स्पेसिफिक स्किल्स बढ़ा करके सबसे फर्स्ट आने का प्रयास करें तो वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हो जाएगा. दूसरी बात क्या होती है, हर बार एडवेंचर स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना महंगा नहीं पड़ता है. इफ यू आर डूइंग ट्रैकिंग और हाइकिंग, व्हाट ऑल यू नीड, ओनली अ ट्रैक पैंट, गुड टी शर्ट, ट्रैक jogging shoes, that's all, and one backpack with 1 liter of water bottle and some kind of snacks, that's all.
दैट्स ऑल यू नीड। मैं अपने यहाँ के जो बीपीएड के बच्चे हैं, महीने या 2 महीने में एक बार यहाँ पर आसपास में कुछ एरियाज हैं, हम वहाँ पर जाते हैं, या हम अपने कॉलेज से वॉकिंग चालू करते हैं। 20 किलोमीटर का सर्किट हम लेते हैं आराम से, घूमते हुए गांव से, देहात से, जंगलों से। तो जो लोकल बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लोकल बच्चे हैं दे आर ऑर्गेनाइजर्स, दे अरेंज द थिंग्स कि आप मेरे गांव में आइए, यहाँ पर हम आपको कुछ नाश्ता पानी देंगे, पैदल पैदल फिर आप इस गांव से जाइए, इस तालाब के पास से जाइए, व्यू बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सीनिक व्यू है, इस खेत से होते हुए जाइए। अगर आप इस गांव में आएंगे तो हमारे पास है, हमारे गांव का मेरा जो है एरिया है, वहाँ का न्यूनतम हम आपसे ये चार्ज करेंगे। नाश्ता अगर मैं नॉर्मली कोई होटल से खाता हूँ 20 रुपए लगता है, वो मेरे से 10 रुपए ले रहा है और सारे बच्चों को नाश्ता दे रहा है। दैट्स ऑल यार, दैट्स इट। बहुत महंगा नहीं है। सिंपल हाइकिंग, ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग में हमको प्लानिंग करना है कि हमारे रूट क्या होंगे, रूट के सेटअप क्या होंगे। अब इसी दौरान हम घूम रहे थे, इस प्रकार से हम, अब उनका कुछ ट्रेडिशनली स्पोर्ट्स है, कुछ गेम्स है, तो इसी ट्रैकिंग के दौरान हमने उसको भी ऐड कर लिया। 5-10 मिनट हम ये भी खेल लेंगे, खेल लिया, उसके बाद हम आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम एकदम से हायर लेवल पे ना सोचते हुए अगर हम लोअर लेवल पे सोचते हैं तो काम हो सकता है सिंपली। वैसे जैसे आपने कहा, एक अच्छा एग्जांपल दिया, और कुछ सर का जो अपने देवनाथ सर का एक कंसर्न था कि बहुत महंगा होगा, बहुत ज्यादा हमको पैसा लगेगा, बट इसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हर बार हमको पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर हम कुछ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी करेंगे तब हमको पैसे की आवश्यकता, इक्विपमेंट्स पड़ सकते हैं, रोप्स की, कैरेबाइनर्स की, उसकी जरूरत पड़ सकती है, पर वैसे नहीं पड़ेगी। अब जैसे आपने एक एग्जांपल दिया बैम्बू राफ्टिंग का, वो लोग करते हैं, उनको आवश्यकता नहीं, पर अगर हम जाएंगे तो हमारी सेफ्टी के लिए कुछ इक्विपमेंट हमको लग सकते हैं और उसको हम पहन करके कर सकते हैं। पर अगर वो लोग कर रहे हैं, उनको उसकी आदत है, तो वो आराम से कर सकते हैं। पर एज ए एडवेंचर स्पोर्ट्स जब मैं उसको ऑर्गेनाइज करूंगा दूसरों के लिए कि आप हमारे यहाँ पर आओ, जियो टैग्ड हमारा क्या बोलते हैं, ये एक तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स या कल्चरल एक चीज है, हमको इसको करना है, लोग उसको एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। बैम्बू राफ्टिंग में वो जाके बैठेंगे तो उनके सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज हम दे सकते हैं, बहुत महंगी नहीं है, लोकली उसको ऑर्गेनाइज करके किया जा सकता है। और अगर हम थोड़ा से अलर्ट रहें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो कर सकते। जैसे कि व्हाइट वाटर राफ्टिंग है, अगर आप ऋषिकेश गए होंगे, व्हाइट वाटर भी नो वाइस का वो लोग बैठालते हैं, इतना रिस्की होता है, फिर भी प्रॉपर उसमें सेफ्टी के जो प्रिकॉशन है उनको दे करके बांध के बैठालते हैं। व्हाइट वाटर राफ्टिंग अच्छे से कराई जाती है, बहुत कम वहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ चीजें, हम ये नहीं बोलते एक्सट्रीम लेवल पर, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारे आसपास जिस प्रकार का एनवायरनमेंट हो, जिस प्रकार की चीजें अवेलेबल हो, उसी पर हम काम करें। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे झरने वगैरह हैं, तो कभी कभी हम अपने यहाँ के बीपीएड के बच्चों को साल में एक बार वो झरने के पास में एज ए पिकनिक लेके जाते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज करके लेके जाते हैं। वहाँ के जो लोकल बच्चा है झरने के आसपास, अभी बहुत सारे लोग वहाँ पर, बहुत ज्यादा भीड़ आती भी नहीं है, कम भीड़ आती है, तो वहाँ पर हम पूरा खाना पानी अपना पैक करके लेकर के जाएंगे और वहाँ पर हम उनको एक करवाया, बहुत ही सेफ्टी, और सेफ्टी के साथ उनको वापस भी ले आते हैं। तो इस प्रकार से हम ऑर्गेनाइज करके बहुत ही लो कॉस्ट में हम बहुत सारी चीजें छोटी छोटी चीज करके हम सीख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो मुझे जो समझ में आया कि अगर कोई भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है और उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में किया जाए, फॉर कॉमन पीपल किया जाए, जहाँ पे लेवल ऑफ रिस्क ज्यादा होगा, तो हम लोग उसको एज अ एडवेंचर स्पोर्ट्स टर्मोलॉजी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम। सर, हमारा एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है। प्लीज सर, nowadays in MPH syllabus adventure sports are there nowadays. तो is there any career through adventure sports? सर मैंने बताया, उनका प्लीज 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 उनका यही क्वेश्चन, उनका यही क्वेश्चन है, अगर मेरा कोई जॉब या कोई कैरियर है क्या थ्रू एडवेंचर स्पोर्ट्स? देखिए, हम हमेशा जॉब ही क्यों खोजते हैं? व्हाई वी आर जॉब सीकर्स? व्हाई वी आर नॉट कमिंग आउट विद द माइंडसेट दैट व्हाई वी आर जॉब सीकर, व्हाई नॉट वी आर जॉब गिवर्स? मैंने कई बार इस वर्ड का यूज किया, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, कि आप अपना क्या बोलते हैं कुछ प्लान करके। एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारे इसमें है। मैंने कहा बहुत इजी भी हो सकता है, बहुत हार्ड भी हो सकता है। ट्रैकिंग हाइकिंग बहुत इजी है। अब टेरिन अगर आपने चूज किया, टेरिन अगर इजी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टेरिन अगर टफ हो गई
एकदम रॉकी टेरिन है, माउंटेन्स हैं, कहीं बीच में नदी आ गई है, उसको आपको क्रॉस करना है, तो ये रिस्की हो गया। ये तो आपके ऊपर में कि आप टेरिन कैसा चूज करते हैं। टेरिन जो है वो आपकी रोड के साथ साथ है या रोड पे ही है, पर टेरिन रोड से बहुत दूर है, जंगल के अंदर में है, तो ये टफ हो गया। ये तो डिपेंड हमारे ऊपर है कि हम धीरे धीरे इसके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए काम कर सकें, पहला बात। दूसरा बात, जॉब, या तो जो टूर ऑपरेटर है आप ट्रेनिंग लेकर के उनके साथ में जुड़ जाइए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके आसपास कोई अच्छा वेन्यू है जहां पर आप ये चीज करवा सकते हो, तो क्यों आप पार्ट टाइम, कौन सा एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, थोड़ा सा आप अगर अलर्ट हो जाए, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, तो आप ऐसा पार्ट टाइम शुरुआत में 8-10 लोग के साथ में, या चलिए छोड़िए 8-10 बाहर के लोग भी छोड़िए, फ्रेंड सर्कल, कई बार हम पिकनिक जाते हैं फ्रेंड सर्कल के साथ में और हम अनऑर्गेनाइज रहते हैं कि हम पहुंच तो गए, हमारे पास ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है। सिंपल एक माइंडसेट बिल्डिंग है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, इवेंट मैनेज कर रहा हूं, चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्कल में वो अच्छे से मैनेज करूं। यही क्या बोलते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत है कि भाई अब कई बार हमने देखा होगा हमारे फ्रेंड सर्कल में भी बात होती है कि यार ये बंदा जाता है तो ये हर चीज बहुत अच्छे से मैनेज कर देता है, अपन कहीं भी घूमने जाएंगे तो इस बंदे को जरूर से लेके जाएंगे। अब वो फ्री में अपनी सर्विसेज दे रहा है, अगर वो बोले मैं इसका चार्ज करूंगा, नाउ जॉब बिगिंस, और एज ए एंटरप्रेन्योर आपका एक बिजनेस चालू हो गया। अब वो फ्रेंड बोलेगा कि ये जब भी उस एरिया में लेके जाता है, उसको उस एरिया का बहुत अच्छा नॉलेज है और वो बहुत अच्छे जो पॉइंट्स कवर करवा देता है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी कर देता है, जॉब बिगिंस। यानी उसकी हॉबी है और उसका इंटरेस्ट भी है। तो अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारा इस प्रकार से, तो हम क्यों ना, अच्छा मैं नॉर्मली सबसे पहले बोला कि बीपीएड और एमपीएड मैक्सिमम वाइड स्प्रेड में ये टीचर एजुकेशन कोर्स है जो कि जॉब सीकिंग कोर्स है। मैंने बोला कि बीपीईएस एमपीएस 2015 में यूजीसी ने लॉन्च किया है। अब एमपीएड में एडवेंचर को हम एक छोटा सा पोर्शन ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं कि ये 11th-12th में एमपीएड वाले एज अ पीजीटी ज्वाइन होंगे या एमपीएड नेट करके कॉलेज में ज्वाइन होंगे, तो इनको एडवेंचर मींस कम से कम ये बच्चों को लेके पिकनिक बाहर जाएंगे तो इनको थोड़ा नॉलेज तो रहेगी क्या होना है। अगर मान लीजिए कोई को हमने मनाली में लेके गए, अपने बच्चों का एक पैकेज बनाया, अब नॉर्मली सारे प्राइवेट कॉलेजेस इवन अब गवर्नमेंट भी मनाली और यहाँ वहां पर आपके हिमालयन बेल्ट में लेके जा रहे हैं, वहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है और आपको नॉलेज नहीं कि क्या है। अगर आपको नॉलेज नहीं है और कोई बच्चा एकदम से क्या बोलते हैं पैरा ग्लाइडिंग में चला गया, उसको कोई चोट लगा, पर आपको नॉलेज है तो कम से कम आप सेफ्टी को उसके ध्यान रख सकते हो कि ये किस प्रकार से सेफ हो सकता है। तो इसलिए वो कोर्सेस वहां पर हैं, आपको समझना भी चाहिए क्योंकि अब ये ट्रेंड बढ़ रहा है, बंगी जंपिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है। बंगी जंपिंग कितना अच्छा स्पोर्ट भी है प्लस कितना रिस्की भी है कि आप एक हाइट से उसको सीधा छोड़ दे रहे हैं पैर में बांध करके रस्सी। तो हमारे को ये नॉलेज होना चाहिए कि मेरा किस बच्चा, अगर आप एज अ आप जॉब कर रहे हो एज अ स्पोर्ट्स ऑफिसर, एज अ पीटीआई, और एक पिकनिक में लेके जा रहे हो, बच्चा बोलता है मेरे को बंगी जंपिंग करना है, आप अपने टीम के बच्चे को जान रहे हो कि ये बंगी जंपिंग के लायक नहीं है, इसका फिटनेस उतना अच्छा नहीं कि ये उसको झेल जाए, तो उसको नहीं आपको करने देना है। दूसरा एक पार्ट हो गया एज अ आप खुद एक बिजनेस चालू कर लो इसका और आप खुद करवाओ। तो दोनों चीजें, अगर आपको खुद करना है तो थोड़ा सा, अब ये नया फील्ड है, नए फील्ड में जैसे बाकी बिजनेस का रूल है कि पहले आपको अपना नाम कमाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वैसे ही अब आपको, अगर आप इस काम को करते, मैंने पहले भी कहा कि आप पीटीआई हो, पीटी हो, साथ में आप एक साइड बिजनेस ग्रुप में धीरे धीरे इसको इवेंट मैनेजमेंट चालू करिए, समझिए, सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसकी ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए, मैंने आपको बताया हिमालयन बेल्ट के इंस्टीट्यूट, और गुजरात में जो है पंडित दीनदयाल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सबसे सस्ता 2000 रुपए में 10 दिन की ट्रेनिंग विद खाना रहना सब फ्री, इक्विपमेंट फ्री। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहोगे। सिंपल एक आदमी क्या बोलते हैं पिकनिक मनाने जाता है, 2000 रुपये पर हेड खर्चा कर देता है, और गिर फॉरेस्ट में आपका नाइट ट्रैक से लेकर के हाइकिंग से लेकर के रॉक क्लाइंबिंग से लेकर के सब चीज सिखाई जाती है, रैपलिंग, स्लिथरिंग, सब कुछ सिखाया जाता है और बहुत अच्छा एरिया है। तो अगर हम कोई सीखना चाहे, बहुत महंगा नहीं है। अगर हिमालयन बेल्ट में अगर आप जाते हैं तो वहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के कई सारे कोर्सेस हैं जिनकी फीस, और बहुत दिन के नहीं, 24-24 दिन के कोर्सेस हैं, 10 दिन से लेकर 24 दिन तक के कोर्सेस हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो आपका माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर कई कोर्सेस 7-7 दिन के हैं।
मोटर पैराग्लाइडिंग, मोटर को पीछे में बांध करके पैराग्लाइडिंग करना, ये सब सिखाए जाते हैं और ये हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये हम भी अपने छोटे लेवल पर, पहले छोटी चीज है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सीधा इसको आप कई लोग चीज कर देखा हूं, तो ये इसका क्वेश्चन होगा आपका प्लीज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ नाउ इट इज़ ओपन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन और सजेशन है तो प्लीज़ आप हैंड रेस करें और अनम्यूट करके बता सकते हैं प्लीज़। No sir, I think no question are left. Now we'll go to the vote of thanks. आप आज का कार्यक्रम का हम अंतिम लगने पर हाजिर हुए हैं। वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर केशव चंद्र ग्रोव सर से, प्लीज गिविंग द वोट ऑफ थैंक्स। नमस्कार सर, चरण स्पर्श। সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপন, নিউ হরাইজন অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন 21st century, 100 weeks virtual lecture series organized by Department of Physical Education, Seva Bharati Mahavidyalaya in association with Physical Education Foundation of India। इस कार्यक्रम के दौरान 82nd एपिसोड के अंतिम चरण में हम सभी आ चुके हैं। इस अंतिम चरण में जो गुरु दायित्व डॉक्टर मृत्युंजय दास सर ने दिया है, धन्यवाद ज्ञापन। सबसे पहले आज का स्पीकर मेजर डॉक्टर ओमजी गुप्ता सर, जो मेरा गुरुदेव है और मास्टर डिग्री के मेरा सीधा शिक्षक रहे हैं, और बहुत दिनों के बाद लगभग 11 इयर्स के बाद सर से सीधा आज कुछ सीखने का और मौका सर ने दिया है। इसलिए सर को महाविद्यालय की तरफ से इस छोटा सा कार्यक्रम के दौरान से और मेरे तरफ से सर का चरण स्पर्श करता हूं। इस कार्यक्रम के दौरान हमारा बीच उपस्थित है फॉर्मर वाइस चांसलर जीजाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार उत्पल महाशय, उपस्थित है प्रोफेसर परिमल देवनाथ महाशय, उपस्थित है स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर सुब्रत मल्लिक सर, उपस्थित है डॉक्टर दिलीप कुमार बंदोपाध्याय सर, और सभी को अपना अपना सभी उपल सर, परिमल देवनाथ सर, मल्लिक सर को अपना मूल्यवान सजेशन देने के लिए आप सभी को चरण स्पर्श करता हूं। आज इस कार्यक्रम के शुरुआत हमारा महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर देव प्रसाद साहू महाशय, प्रिंसिपल सेवा भारती महाविद्यालय, जिसका ओपनिंग स्पीच, वेलकम स्पीच के दौरान शुरू हुआ था, सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद व्यक्त करता हूं डॉक्टर मृत्युंजय दास, जो इस कार्यक्रम को आज शुरू से अभी तक चला रहा है। धन्यवाद व्यक्त करता हूं डॉक्टर नीतू दत्ता मैम को, जो आज इस कार्यक्रम के दौरान सर का छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय दिए हैं। मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम के दौरान जो भी शिक्षक, अध्यापक इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे हैं, सभी को हमारा महाविद्यालय के दौरान और इस छोटा कार्यक्रम के तहत हम सभी को शुक्रगुजार, सभी को नमस्कार प्रणाम व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के दौरान जो भी स्टूडेंट आज उपस्थित रहे हैं,
सभी को शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा का भी शुभकामनाएं देता हूं, और जो लक्ष्मी पूजा हो चुका है उसका भी शुभकामनाएं देता हूं। सभी को फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपना गुरुदेव मेजर डॉक्टर ओमजी गुप्ता सर का चरण स्पर्श करते हुए, किसी का अगर कोई भी नाम लेते हुए मेरा गलती हो गया उसलिए माफी चाहता हूं। फिर से सभी को धन्यवाद व्यक्त करते हुए अगले एपिसोड 83 एपिसोड में मुलाकात होगा। इसी आशा के तहत आज का कार्यक्रम आगे चलाने के लिए मिलते सर को और समाप्त करने के लिए सर को अनुरोध करता हूँ। सभी को फिर से एक बार नमस्कार। थैंक यू वेरी मच ऑल। गुप्ता, चरण स्पर्श। सर को एक बार फिर से आग्रह करेंगे Thank you. सर, आज इस कार्यक्रम के दौरान आपको हमारा इस कार्यक्रम कैसे लगा, एक छोटा सा फीडबैक देंगे मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, थैंक यू। अभी थैंक यू, Thank you. Good night. good night, Utpal sir. you. Take care. Thank you, Thank thank you. you. Good night. Good night, Parimal sir. गुप्ता सर, आपको इस कार्यक्रम कैसे लगा, छोटा सा एक फीडबैक देंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। फीडबैक व्हाट्सएप पे भेजूं कि अभी आपको देना है बोल करके? सर अभी बोलेंगे तो सर ये रिकॉर्ड में रहेगा सर। अच्छा ठीक है। कार्यक्रम बहुत अच्छा है और कुछ नए फील्ड्स को, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि को करिकुलर एक्टिविटीज साथ में एकेडमिक एक्टिविटी के अलावा हमारा केशव सर, স্যারের নেটওয়ার্ক ব্রেক করছে। अभी ये सर फिजिकल एजुकेशन अवेलेबल जो बच्चों को मालूम पड़ता है, तो ये लेक्चर बहुत ही शानदार लेक्चर है। प्लस हमारे जैसे प्रोफेशनल लोग को भी एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो 1 हो 2 हो 100 हो, उनको प्लेटफॉर्म मिलता है और वो आपस में बात करते हो, तो ये एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है और ऐसा प्लेटफॉर्म लगातार होते रहना चाहिए और हर इंस्टीट्यूट के द्वारा होते रहना चाहिए। ये मेरे ख्याल से आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस में आएगा और मैं अपने कॉलेज का नैक और रूसा काउंटर भी हूँ, तो ये एक आइडिया बहुत अच्छा लगा मेरे को। हो सकता है इसको मैं आपसे प्रेरणा लेकर के इसको अपने आप ही चालू कर सकता हूँ कि कम से कम अगर लेक्चरर्स को हम बाहर से कॉल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसके थ्रू हम अपने बच्चों को उनसे इंटरेक्शन करवा करके सीख सकें। बहुत ही शानदार है आपके महाविद्यालय का और आपके जितने भी ऑर्गेनाइजर्स, आपके टीचर, बहुत बहुत साधुवाद है। इतना अच्छा काम आपने किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये सिर्फ मैंने यहाँ पर आकर लेक्चर नहीं दिया है, मैंने यहाँ पर आकर सीखा है, बहुत सारी चीजें सीखी है, जानी है, समझा है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। कीप इट अप। बहुत अच्छा लेक्चर था मेरी ओर से, आपको बहुत साधुवाद और सभी को बहुत बहुत क्या बोलते हैं धन्यवाद। आपके प्रिंसिपल महोदय जिन्होंने क्या बोलते हैं इस लेक्चर के लिए राजी हुए और बहुत ही शानदार सीरीज 82 आपका हो चुका है, तो देव प्रसाद साहब सर को बहुत बहुत साधुवाद, आपके HOD चौधरी सर को साधुवाद, और आप लोगों ने जो यहाँ पर इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया, दत्ता मैम आपको साधुवाद कि आपने बहुत ही अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू वेरी मच। और मृत्युंजय सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने इसको ऑर्गेनाइज किया और आपने मेरे को बहुत, मेरा हमेशा एक चीज रहता है कि मैं जब भी इंटरेक्ट होता हूँ तो मैं सीखता ज्यादा हूँ, सिखाता कम। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। उपल सर को कम से कम चरण इस पर बोलने का मौका मिला, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर नाइस सजेशन एंड एनकरेजमेंट। थैंक यू सर। आप सुस्त रहिए, हमारे महाविद्यालय में आइए, फिजिकली आइए फिर और हमें और एनरिच कीजिए सर। थैंक यू सर। आप अगर मेरे को मौका देंगे मैं बिल्कुल सीखने के लिए आना चाहूंगा, सीखने के लिए कि आप